Good morning, class 7th. This is your science class, and today we are going to start chapter number 7, and that is weather, climate and adaptations of animals to climate. Means in this chapter we are going to study about the conditions of weather, what does weather mean, and climate and adaptations means special features that are present in bodies of animals according to the climate where they live. So let's start our chapter. So do you remember the things you were asked to pack when you were heading for a hill station? Means when you were going to a hill station, what your parents asked you to pack in your bags. Of course, it may be woolen things, it may be woolen clothes, okay. You were asked to pack your jackets, you were asked to pack your caps and woolen sweaters, etc. So why is it so? Why you were asked to pack woolen things? Because the climate is cold when we are going to a hill station. Whenever we talk about a hill station, the climate is really cold and chill. So we need woolen clothes there. When the sky is cloudy, your parents insist you to take an umbrella with you. जब भी आसमान में काले काले से बादल होते हैं और हमें लगता है कि बारिश होने वाली है, तो हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें कहते हैं कि प्लीज़ कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, आप अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर जाइए. सो वाई दे आस्क अस टू डू सो? बिकॉज सो दैट वी डोंट गेट वेट, ताकि हम गीले ना हो जाएं बारिश में, है ना. सो हैव यू हर्ड your elders in your family that before planning a family function they discuss about the weather? जब भी कोई फैमिली में फंक्शन होना होता है तो उसके पहले हमारे एल्डर्स जो हैं, घर के जो बड़े हैं, वो वेदर को डिस्कस करते हैं. इसी तरह से कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स जो होते हैं, वो वेदर को डिस्कस करते हैं कि वेदर कैसा है, इज इट सनी, इज इट क्लाउडी और इज it going to rain today, or whatever the weather is. But have you ever thought why they discuss about these things? It is because weather has a deep effect on the game, and it has a deep effect on our lives too. Profound, here profound word is being used. Profound means deep. वेदर का हमारी लाइफ्स पर भी और गेम पर भी, दोनों पर एक बहुत ही डीप इफेक्ट होता है. और हमारी बहुत सारी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो हम प्लान करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द वेदर, प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे. कि उस दिन के लिए जो वेदर है, मौसम जो है, वो उसका प्रेडिक्शन क्या है. हम कहीं बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, तो हम पहले देखते हैं कि उस दिन बारिश तो नहीं होने वाली है, उस दिन कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं होने वाली है. तो इस तरह से मतलब जो भी वेदर प्रेडिक्ट किया गया उस दिन के लिए, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में वेदर को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट 5 डे का वेदर फोरकास्ट मतलब जो इन एडवांस वेदर बताया जाता है, तो वो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में, या फिर उसको चेक करने का तरीका क्या है, डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन टेलीविज़न, ऑन न्यूज़ चैनल्स यू कैन सी daily reports of weather. You can hear weather reports on radio also, and you can read weather reports in newspaper also. And now the time is more advanced, so you can check weather reports in your mobile also. So but do you know what this weather really is? What is the meaning of weather? So in this chapter we will study about weather and climate, and side by side we will also see how weather is different from how weather have a deep effect on different forms of life, how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. Habitat means the home where an animal lives. So how different forms of life are adapted means how they have special features based on the habitat. So let's start our topic number 7.1, that is weather. Okay, so in the figure 7.1, if you will have a look at the figure 7.1, so this one is the figure, my dear students. This is figure 7.1, and in this figure, as you can see, there is weather report. It's a clipping of a newspaper, and in this newspaper clipping, you can see maximum temperature, minimum temperature, then time of sunset, time of sunrise. Is that sunset will be at 5:11 p.m. Sunrise will be at 7:15 a.m. Then time of moonset, moonrise, and
apart from this, additional information is also there, that mist or fog in the morning, that in the morning foggy will be there, it will be foggy, fog रहेगी, धुंध होगी, and partly cloudy sun, मतलब हल्के हल्के से cloudy sky, सॉरी, कि हल्के हल्के से बादल जो है वो आसमान में रहेंगे, एंड मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे, मीन्स मंडे को मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना होगा, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, कि जो एयर है, जो हमारे आसपास है, जो सराउंडिंग्स में जो एयर होती है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कितना प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, 83%, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी विल बी 83% एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी विल बी 37%। सो दिस इज वेदर रिपोर्ट, जो हमें एक दिन के पूरे वेदर के बारे में बता रही है। तो इसमें हमने कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेचर, we have discussed about sunrise sunset timings, moonrise and moonset timings. Apart from this, we have discussed about humidity, and we have discussed whether sky will be cloudy or clear. Okay, so this is sample of a weather report that we have taken from a newspaper. So let's come back. So in figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given to you, and we find that daily reports of weather that carries information about temperature, about humidity and about rainfall during the past 24 hours, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, ह्यूमिडिटी कितनी रही। तो ये सारी बातों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स। और जो आने वाला दिन है, फॉर द कमिंग डे, वेदर प्रेडिक्शंस वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। वेदर प्रेडिक्शंस मीन्स जब हम फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है, इट मे रेन, ठीक है। तो जब हम इस तरह से आइडिया लगाते हैं तो मीन्स प्रेडिक्शंस जो है वेदर के लिए फॉर द नेक्स्ट डे वी कैन ऑल्सो हैव। एंड ह्यूमिडिटी, वी नो दैट मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर का मेजर जो होता है दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। सो now Boju is having one question is in mind that I wonder who prepared these reports. Boju is thinking that who is preparing these reports. So I hope you might be thinking, आप लोग भी सब सोच रहे होंगे कि ये reports prepare कौन करता है, कौन इतना सारा डाटा कलेक्ट करता है, कैसे करता है। So जो weather reports हैं they are prepared by meteorological department of government, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का meteorological डिपार्टमेंट है वो इन सबको रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, एंड दे प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट से पिक्चर्स ली जाती हैं और उन सैटेलाइट पिक्चर्स और सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से वो इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर। ये जो डिपार्टमेंट है मीन्स मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में, रेन के बारे में, और फिर उस डाटा से वेदर का प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। सो नाउ वन एक्टिविटी इज देयर। सो एक्टिविटी 7.1 में आपने करना क्या है, यू हैव टू कट वेदर रिपोर्ट्स ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको पिछले वीक की न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट्स को कट करना है, जैसा हमने फिगर 7.1 में देखा था ना, उसी तरह की वेदर रिपोर्ट्स आपको कट करनी है। और अगर आपके पास में न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स से बोरो कर सकते हैं, यू कैन बोरो फ्रॉम योर नेबर्स ऑल्सो। और आपको इन रिपोर्ट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और उसके अलावा जो कटिंग्स हैं यू हैव टू पेस्ट देम ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, और यू कैन पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर ऑल्सो। तो अगर आपके पास में कोई भी इनमें से कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन कॉपी दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होती है वेदर के नाम से, यू कैन कॉपी दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। सो टेबल 7.1 हमारी क्या कहती है, वी विल जस्ट सी। तो इसके अंदर फर्स्ट रो जो है वो आपको सैम्पल के लिए दी हुई है। सो लेट्स हैव अ लुक एट टेबल 7.1। सो दिस इज टेबल 7.1। सो वेट फॉर अ मिनट।
Okay, so I hope you can see table 7.1 on your screen now. So this is table 7.1 and in this table what you have to do, weather data of a week. आपको एक वीक का वेदर डाटा कलेक्ट करके और उसको पूरे को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में. You have to make this table in your notebook or you can do it in your book also. So in this table, in first column you have to write date. In second column you are going to write the maximum temperature. In third column you are going to write the minimum temperature. In fourth column you will write minimum humidity, means minimum amount of water vapors which are present in air. Then maximum humidity you will write and then you will write about the rainfall. But remember कि rainfall daily नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको हर उसके अंदर rainfall का जो भी है डाटा मिलेगा हर वेदर रिपोर्ट के अंदर. इट्स नॉट श्योर. ओके, सो अब ये जो टेबल है, जब आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, अब देखिए रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं. तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज. रेनफॉल को मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं रेन गोज. और ये जो रेन गोज है बेसिकली होता क्या है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके टॉप पर एक फनल होती है, एक कीप टाइप होता है जो जैसे कॉनिकल शेप होता है, बर्थडे कैप ऑफ जोकर की तरह से. तो जितना भी रेन वाटर होता है उस फनल के थ्रू सिलेंडर में कलेक्ट होता जाता है एंड आफ्टर द रेन स्टॉप्स वी कैन मेजर द रेनफॉल. रेन के मतलब रेनफॉल के स्टॉप होने के बाद में हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि वो हमारा कितना हो गया है. ओके, सो अब जो है हमें क्या देखना है बच्चे इसके अंदर कि रेनफॉल को हमने मेज़र कर लिया है रेन गॉज की हेल्प से. रेन गॉज इज द इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं रेनफॉल को. ठीक है, इसके बाद में डू ऑल द 7 days हैव सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. क्या पूरे 7 के 7 दिन सेम तरह का डाटा है हमारे पास में, या फिर डाटा में कुछ चेंजेस हैं? क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आर दी सेम, या फिर जो डाटा है दैट इज डिफरेंट? तो वी विल ऑब्जर्व कि जो हमारा डाटा है उसमें से कोई भी 2 दिन सारे एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे. ठीक है, अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर सेम है तो मे बी जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है वो डिफरेंट हो, मे बी कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफरेंट हो, या फिर ये हो सकता है एक दिन रेनफॉल हो रहा है और एक दिन रेनफॉल हो ही नहीं रहा है. तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास में हो सकती हैं. सो ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन एनी 2 days. सारे के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं 2 दिन के लिए. ठीक है ना, बिकॉज देयर आर वेरिएशंस, उसमें चेंजेस होंगे. ठीक है, नाउ वी आर इन अ कंडीशन टू डिफाइन वेदर. अब हम इस कंडीशन में आ गए कि अब हम वेदर को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज वेदर. सो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस. किसी जगह पे जो डे टू डे कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, with respect to humidity, rainfall, wind speed, these are known as weather of a day. ठीक है, कि उस जगह पे उस दिन का वेदर क्या है. तो उस जगह पे उस दिन टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, रेनफॉल कितना रहेगा, विंड स्पीड कितनी रहेगी, विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी. तो ये जो सारी चीज़ों का जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज वेदर. एंड जो टेम्परेचर, humidity, rainfall, wind speed, these are known as elements of a weather. इनको हम क्या कहते हैं, वेदर के एलिमेंट्स कहते हैं. सॉरी, यस. अब देखिए, the temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. And the weather of a place changes day after day, week after week. मतलब जो हमारा वेदर है डेली टू डेली चेंज होता रहता है. तभी हम कहते हैं ना टुडेज वेदर इज़ क्लाउडी, टुडेज वेदर इज़ रेनी, ओके, टुडे इट इज़ फोगी, या येस्टरडे इट वाज वेरी वार्म, लास्ट वीक द वेदर वाज वेरी हॉट, कि लास्ट वीक बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म मौसम था. तो इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं ना. सो जो वेदर है बच्चे वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एंड इट मे चेंज विद इन डेज में चेंज भी हो जाता है. इट इज़ नॉट श्योर कि मॉर्निंग में जैसा वेदर था आफ्टरनून तक वैसा ही वेदर रहेगा. हो सकता है मॉर्निंग में बिल्कुल क्लियर हो स्काई, बट शाम तक या दोपहर तक एकदम से अचानक से वहाँ पर क्लाउड्स आ जाएं, सडनली क्लाउड्स में अपीयर फ्रॉम नाउ हेयर कहीं से भी,
एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हेवीली, एकदम से ज़ोर से बारिश होना शुरू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो रही है और अचानक से सारे बादल गायब हो जाएंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ना ब्राइट सनशाइन विल बी देयर, बिल्कुल एकदम से ब्राइट सनलाइट विल बी देयर। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि वेदर जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। मतलब इसको फ्यूचर में इसको प्रेडिक्ट करना, इसके बारे में बताना, इट्स नॉट वेरी इजी। सो वी आर गोइंग टू लुक एट अ ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006। मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th मीन्स टोटल 7 डेज के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर ओनली, मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके हमने ग्राफ बनाया है। एंड ये जो टेम्परेचर्स हैं दे आर ऑफ शिलोंग। शिलोंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय इज अ स्टेट विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उन्हीं में से एक है मेघालय और उसकी कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, तो वहाँ का ये ग्राफ है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे बच्चे। सो जब हम टेबल को देखने वाले हैं, so this one is the table. I hope you are able to see this. Yes, you are able to see this. So according to date, maximum temperatures are shown to you that on 3rd of August maximum temperature was 26 degrees Celsius, on 4th of August maximum temperature was 23.5, 5th 25.0 degrees Celsius, then on 6th of August temperature was 22.0 degrees Celsius. Then on 7th of August, maximum temperature was 25.5 degrees Celsius. 8th of August it was 23.3, and on 9th of August it was 24.4. And when we want to represent this data on the graph, then our graph would be like this. हमारा ग्राफ ऐसा होगा। ओके, अब जो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे this vertical axis is showing the, ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ये आपको शो कर रहा है टेम्परेचर, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज शोइंग यू द डेट्स कि 3rd of अगस्त को टेम्परेचर इज 26, देन 4th of अगस्त को टेम्परेचर इज 23.5, देन 5th of अगस्त टेम्परेचर इज 25, 6th of अगस्त टेम्परेचर इज 22 degrees Celsius. So in this way you can see from the graph that how there are variations in the maximum temperature, how the maximum temperature is changing. Okay, so this we can see. So as it is clear from any weather report that the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Okay, and we have special thermometers for recording maximum and minimum temperatures. The thermometers that record maximum temperature, they are known as maximum thermometers, and the thermometers that record minimum temperatures, they are known as minimum thermometers. Okay, so now we have to think, we have to guess that when during the day we have maximum and minimum temperature, कि दिन में किस टाइम maximum temperature होता है और किस टाइम minimum होता है। तो गर्मियों के दिनों के बारे में ज़रा सोचो अपने माइंड में कि कब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। I feel most hot when it is afternoon, दोपहर के टाइम मीन्स 12 to 1 PM के बीच में मुझे बहुत गर्मी लगती है, एंड इट इज़ मोर कम्फर्टेबल, और आई कैन से इट इज़ मोस्ट कम्फर्टेबल इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम पे हम मैक्सिमम टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं, एंड वी मेज़र मिनिमम टेम्परेचर्स जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग. So that's why we feel in summers we feel so miserable in the afternoon. We feel very uncomfortable in the afternoon and we feel very comfortable in the morning. This is because in the morning we have maximum temperatures and in the afternoon we have minimum temperatures. Sorry, in the morning we have minimum temperatures and in the afternoon we have maximum temperatures. So my dear students, today we have discussed about the phenomena of weather, and in the next video we are going to discuss about climate. Okay, so till then keep on watching the video. I hope you understood the concept of weather clearly. Thank you everyone.